What do you think of the phrase "nice guys finish last"? I mean, bro, they don't even finish. चलो ठीक है, वो तो हाँ मतलब talk to me हम about बात that, करते यार. हैं उसके बारे में, ठीक है? Yeah. अब Tell me. the nice guy in this context जो हमने बोला है, like I would want to change the term nice guy, all right? Okay. I would want to be like weak guys finish last. That's what I'd want to come to. And when you say So weak, do nice you तो generally mean सबको ही होना है भाई. when you say weak, do you mean weak as in जिनकी body अच्छी नहीं है? हाँ, हम cover करते हैं, हम ये खत्म कर ले पहले, अगला thread हम ये वाला लेते हैं, nice guys finish last वाला, ठीक है? Okay. But anyway, कि like you know, you get stuck in the friend zone, you keep doing favors for people, you keep doing so many things, and you're generally nice. But attraction isn't logical, it isn't because कि it isn't transactional even. क्योंकि मैंने तेरे को फेवर करा तो आओ हम सोते हैं साथ में जाके. अबे लौड़ा मेरा क्यों सोते हैं हमारे साथ? यही समझ रखा है तुमने दुनिया को. So it's like and nobody likes that यार. But हम बंदे होते हैं ना, स्कूल में भी यही, मेरे दोस्तों ने भी ये बोला, भाई इसका दोस्त बन जा, 1 महीने बात कर, रोज फोन कर, उसको आदत पड़ जाएगी. I have seen this work यार. I've seen this work with these guys in school यार. हाँ, it will work यार. ऐसा नहीं है कि work नहीं करता. But there's a much better way for you to go about it as well. Without risking being stuck in the friend zone. Yes, there's a much better way also to go about it. Work तो पता नहीं क्या क्या चलता है bro. Work तो करने को तो. There is a probability and a possibility and anything and everything might work and anything and everything might not work. It just matters what works for you. But no, what is the concept 100%. Of nice guys finish last वाला concept क्या है? Tell me what do you mean when you say weak guys? हाँ, weak guys basically bro, देख ये again जैसे मैंने बोला ना, अगर तुम सोच रहे हो मैं किसी को फेवर दूंगा और इसलिए वो बंदी मेरे साथ जानी चाहिए, you're expected to do that. So you're not doing that favor, or you're not being nice because you want to be nice to the person. You're being nice because you have an ulterior motive there. जैसे क्लब में people are like, मैं लोगों को क्या करना होता है, अप्रोच कैसे करनी है क्लब में, we'll go buy the girl a drink. And Delhi में girls don't accept drinks from random guys. Because रूफी कर देते हैं लोग यहाँ पे, हरामी होते हैं लौंडे, रूफी तो होते हैं. नहीं रूफी तो नहीं करते, बंदे अच्छे होते हैं. कौन सी पार्टीज में जा रहे हो तुम? हाउस पार्टीज में हो जाती हैं चीजें भाई, पता नहीं, मैंने कभी अपनी रियलिटी में नहीं देखा कि लोग रूफी कर देते हैं. बाकी चीजें जो होती हैं वो कंसेंसुअली दोनों लोग करते हैं. I have seen it, which is why I despise the scene. अच्छा, because I've seen this fucking crazy bro. I've never seen it. तो मतलब मैं जिधर जा रहा हूँ मैं उसमें हुई नहीं, and that's not something, I mean we condone all that stuff यार. तो मेरे बंदे मतलब हम काफी sorted हैं. तो anyway, the thing is when you go up to a girl and you tell her to buy her a drink, बंदियां एक्सेप्ट नहीं करती हैं because they're like, if I buy a drink right now, दो चीजें. पहली बात तो इन्हें लग रहा है भैंचो मैं गरीब हूँ, मैं अपनी ड्रिंक खुद नहीं खरीद सकती. Secondly, I can buy my own drink. And secondly, if I take the drink, I'm going to be obliged to talk to this guy. That's what guys feel. और अगर बंदी बोले नहीं मैं जा रही हूँ, they're going to be like, what the fuck, you're a fucking bitch. Then guys get triggered also ना, you're a fucking bitch, you took my fucking drink. But it's like भैंचो तुम्हें पहले बोलना चाहिए ना कि अगर भैंचो तुम्हें you want the girl to expect all that, तो बंदियां नहीं लेती हैं right drinks. And anyway I tell guys not to buy girls drinks anyway, because कई बंदियां इसका opposite spectrum भी है, कई बंदियां तुम्हारी drinks लेती रहेंगी तो वो गोल्ड डिगर भी होती हैं, तो वो भी स्पेक्ट्रम है. तो we're like यार ये मत करो till the time you really want to do it from an honest place यार, right? If I'm hanging out with my friends, I want to buy them drinks क्योंकि मेरे दोस्त context. Then it's a different context. Exactly. हाँ, you're not expected या फिर कोई something in return. Exactly. या फिर मेरा बर्थडे है ब्रो, कोई बंदी मिल रही है, या जनरली ही यार मेरे को कोई बंदी मिली, मैं बात कर रहा हूँ, बाप का बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, मैंने बहुत कमा लिया, and I'm just like, because I'm talking to you, I want to be nice here, buy a drink. You're not expected to talk to me, but I mean कोई sorted नहीं है. तो anyway, the core being कि पहले बात करनी आनी चाहिए तुम्हें यार, उसके बाद तुम ड्रिंक खरीदो, बात की बात है. बट जब लोग पहले करते हैं ना तो मैनिपुलेशन में जाते हैं, दे टेंड टू बी नाइस एंड एवरीथिंग, एंड गर्ल्स कैन सी राइट थ्रू दैट. इट्स कंप्लीटली अनअट्रैक्टिव, कतई गंद होता है. सो इसलिए एक वो टाइप के लोग होते हैं, देयर वीक, जो सीधा जाके सीधा बंदी को बात नहीं कर सकते. लाइक हाय एक्सक्यूज मी, यू लुक अमेजिंग, आई वांट टू से हाय, यू वेरी इंट्रीगिंग, व्हाट्स योर नेम. पीपल कैन डू दैट राइट. तो दूसरे जो बंदे जो एसोल्स बोल रहे हैं जिनको, या फक बॉयज बोल रहे हैं, या जो बोल रहे हैं, दे वेरी अपफ्रंट अबाउट शिट. दे लाइक मैं हूँ, ऐसा ही हूँ. तो वो जो ऑथेंटिसिटी होती है, जो रिस्क होता है, और जो है भाई जो इमोशनल स्टिमुलेशन यू गेट, द रोलर कोस्टर राइड यू गेट, एटलीस्ट मजा तो आ रहा है. या बिकॉज ऑफ द वे द पर्सन इज टॉकिंग राइट, बिकॉज वो तुम्हारी हर एक चीज में हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे. देयर नॉट गोना बी यस मैम बॉयज, देयर नॉट लाइक यस मैम. तो अगर मेरे को कुछ पसंद नहीं है, तूने बोला तुझे DDLJ देखने का, मैं मेरे को नहीं पसंद, तो मैं बोलूंगा DDLJ टट्टी है भाई, अच्छे से. we're not going to be afraid of polarizing, right? But a guy who's like कि भाई I want to be nice, so he's like DDLJ हाँ मैं भी देखूंगा, DDLJ मैं भी देखूंगा, basically simping out, right? तो वो नहीं पसंद होता है. And generally it's not about being a nice guy or like an asshole, it's about being a strong guy or a weak guy.
Strong guys are going to be upfront about stuff. They're not afraid to disagree. They're not going to do favors just because they have an ulterior motive. They'll be very upfront about shit. They're going to have boundaries. They're going to be authentic and they're going to be honest about things. The weak guys are going to be nice because उनका ulterior motive है. उनमें वो assertiveness नहीं है. उनमें वो खुद में confidence नहीं है कि वो जाके सीधे बात कर सके. They don't have that love me or hate me mentality, right? They're like, everyone please love me. Everyone please love me, right? And that's very, it's very resentful. Very resentful. Even as an audience भी अगर हम देखें, if we try to accommodate ourselves to the audience, it's very resentful, right? People are like, we want you to be authentic. तो जो हो असली में वो रहना भैंचोद. Yeah, so nobody likes that. Resentful though, I mean, is a nicer way to put it. I would put it as a way I mean, I don't want to use the word pathetic, but वो भी है. from the outside it looks like it, because you're not being true to yourself यार. तुम अपने आप को जब सच नहीं बोल पा रहे, तुम सामने वाले को क्या बोलोगे? हाँ. I don't know. Then how do you build on that? How do you improve from there? यार पहली बात है, ठीक है, वी नीड टू, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं ना, सो नाउ आई पहले तो मैं भी पैथेटिक और चूतिया बंदे ही बोलता था, बट नाउ आई कम फ्रॉम द प्लेस ऑफ एम्पैथी. आई एम लाइक, दैट्स द बेस्ट स्ट्रेटजी दे हैव लर्नड. दैट्स द बेस्ट स्ट्रेटजी दे हैव लर्नड. उन्हें कुछ आता ही नहीं है. तो मैं अपनी साइड से क्या कर सकता हूँ ब्रो? मैं बस वीडियोस डाल सकता हूँ, मैं एड्स रन कर सकता हूँ, मैं कहा आ जाओ द्वारपालों, आओ मंदिर आओ हमारे. तो बंदे जिसको जो अटक जाएगा वो आ जाएगा, जो नहीं आएगा तो भाई उसके लिए कभी था ही नहीं है. और आ रहा है तो फ्री वीडियोस देख ले, यू लर्न इनफ ऑफ इट. यू वांट टू इन्वेस्ट मोर, यू वांट टू कट डाउन योर लर्निंग कर्व, यू वांट टू लर्न फ्रॉम मी डायरेक्टली, साइन अप फॉर अ प्रोग्राम विद मी, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ एंड या थिंग्स आर गोना बी बेटर. तो वही है, आई जस्ट सी द पीपल जो आ रहे हैं, आई एम डूइंग स्टफ फॉर माई सेल्फ वेयर आई एम ऑल्सो लाइक यू नो क्रिएटिंग बाउंड्रीज एंड स्टफ फॉर माई सेल्फ. तो एनीवे वो स्टोरी बता रहे थे यार, मैं तो जो मिस कर दी ना हमने. वो जो बंदे जैसे नाइस गाइज वगैरह आते हैं, जो नर्ड्स होते हैं, उनकी ले रहे होते हैं, जो एमॉग्स होते हैं, जो हमने अभी कवर किया ना. तो क्लब्स में मैंने देखा यार, बहुत बार देखा मैंने, धमकाए हैं बंदे काफी, ठीक है. एक बार क्या हो रहा था, आई वाज इन बूट कैंप, आई वाज इन अ क्लब इन दिल्ली एंड देयर वाज लाइक 4-5 गर्ल्स. सो वन ऑफ माय clients, he went up and spoke to them. I was with another client talking to some other girls. तो बात करी and then it sort of like died down. The girls were just like, they were nice to him, but उसके आगे कुछ था नहीं. So he left, he came to me, he's like, bro बात चल रही थी बहुत सही, कुछ नहीं पता मुझे, कि come with me. मैं कहा चल भाई हम चलते हैं. So I'm like, मेरे को introduce करा दे because तूने बात कर लिया उनसे, right? Introduce me, I'll talk to them. So वहाँ पे there was a couple standing, there was a guy and a girl standing out there and I'm like, go for it. So he went, तो उसने hi करा, but now the girls didn't want to talk to him. So they gave him the shoulder, all right. Dance floor पे थे हम, he tapped, he's like hi वगैरह. So they just looked at him and they just like gave him the shoulder. This guy right next यहाँ पे हंसने लग गया. This is one of the biggest fears also people have, right? लोग देख के हंसेंगे मुझ पे. लोग देख के हंसेंगे, of course. देख लिया तो क्या होगा, रिजेक्ट हो गया तो क्या हो गया. And I know this, right? And you're never supposed to do that. एम्पैथी वाली बात है यार. वो बंदा है जो उससे ज्यादा पैसे कमाता है, उससे ज्यादा मेहनत करी है उसने, क्लब में आया है, he's going out of his comfort zone to पहले accept that he is not great with women. Secondly, do this thing कि जहाँ वो 3 दिन मेरे साथ बाहर जाने वाला है और मैं मुक्के मार के अप्रोच कराता हूँ ब्रो. कोई नहीं करता है ना, मैं मारता हूँ उसको. मैं कहा बहनचो मर जाएगा मेरे साथ. मैं कहा तू आया है यहाँ पे, मैं कराऊंगा तुझे बहनचो, तू नहीं जाएगा, तू हार मान कैसे सकता है साले. बंदे जमीन पे लेट जाते हैं ब्रो, मुक्के दे रहा होता हूँ उठा के कंधे पे. मैं कहा चल साले अप्रोच कराऊंगा मैं तुम्हें. नहीं तो आई डोंट गिव अप एट ऑल. आई एम लाइक तुम करोगे बहनचो, क्यों नहीं करोगे. मैं पहले ही बोल देता, मैं कहा देखो करना है, बड़े प्यार से बता रहा हूँ, नहीं तो तुम्हारी पिटाई करके करवाऊंगा मैं, लेकिन करवाऊंगा मैं तुम्हें जरूर. तो बंदा हंस रहा है ना, I was like यार, once you see someone laughing at you like that ना, तुम ये it crushes you bro. पता है, you will never be able to do another approach. Never. 100%. और मेरे अंदर का वो जागा. मैं कहा बहनचोद, ये बहनचोद बंदों को ऐसे कैसे कर रहा है. So I was like तो मैंने देखा उसको, मैंने बोला, मैं कहा भाई सुन, मैं कहता 2 टाइप के लोग होते हैं, ठीक है. और इसी टोन में मैं कहा 2 टाइप के लोग होते हैं. एक जो बहनचो कुछ करते हैं लाइफ में, और 2 जो बस बहनचो खड़े देखते रहते हैं. मैं हट यहाँ से. हाँ खड़े हंसते रहते, देखते रहते. हटाया उसको, मैंने अप्रोच करी, बात करी थोड़ी देर, फिर मेरे को भी मना कर दिया, बट एनीवे 2 मिनट बाद तो फिर हम निकले वहां से.